Ji Sidra, I think we are live now. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining in today. आज जो है, we have Sidra Khalid with us, who is manager fashion design at Gul Ahmad Ideas. और सिद्रा से जो है आज हम बात करेंगे about career in fashion design. बहुत से कैरियर्स जो हैं वो वेल नोन है पाकिस्तान में और कुछ कैरियर्स ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है एंड फैशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम. It is also not considered a very popular choice when it comes to Pakistani parents or teachers or institutions. So when somebody goes towards or says कि जी हमने फैशन में कैरियर बनाना है तो लोग उस चीज़ को कोई बहुत अच्छा नहीं समझते. तो सिद्रा से आज हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. सिद्रा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Assalamu alaikum everybody. I am Sidra Khalid, manager fashion design at Ideas Gul Ahmad. And मैं इस फील्ड में इस तरह आई दैट मैंने लाइक ऑल पेरेंट्स, मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे बोला दैट आई शुड ऑप्ट फॉर साइंस जब आप अपनी मैट्रिक या ओ लेवल्स की डिग्री कर रहे होते हैं. सो आई डिड ओ लेवल्स एंड उसके अंदर मैंने अपनी साइंस सारे साइंस सब्जेक्ट्स रखे. उसके बाद आई डिड माई ए लेवल्स एंड देन आई ट्राई टू कन्विंस देम बिकॉज मेरा रुझान नहीं था टुवर्ड्स मेडिकल. तो मैंने उनको कन्विंस किया दैट आई शुड स्टडी बिजनेस बिकॉज आगे जाके देन आई प्रॉब्ली थिंक कि मुझे क्या आगे करना चाहिए. So then in A levels मैंने अपने business subjects लिए and from there I joined AIFT and I decided that yes, because मैं हमेशा I was very passionate about designing clothes and doing something creative because school से ही I was always very good in drawing and my father used to paint as well. तो मुझे लगा that fashion designing will be a good field and I will get to learn a lot. So then AIFT से मैंने अपनी BFT की degree की which is bachelor's in fashion designing. And from there then right after graduating I was picked up by a smaller clothing brand by the name of Insam, जहाँ पे मैंने 7 to 8 months 9 months मैंने वहाँ पे काम किया as a junior designer and I got the first hand experience of working in a practical world कि actual designing क्या होती है and एक small business किस तरह चलता है पीछे से. And then later on I was very young, like it was very young in a sense that it was a very early stage in my career when I was picked up by Gul Ahmad. And I joined Ideas Gul Ahmad and they were just starting off their ready to wear line and और बस वहाँ से start किया and it's been I joined Gul Ahmad in 2013 and I'm still there, so it's been a long journey but I have worked my way up and here I am. सिद्रा, ये बताएं कि आपने कहा आपने ओए लेवल्स जो है वो साइंसेज में किया था, तो ये कैसा रहा साइंसेज का एक्सपीरियंस? क्योंकि आप ये कह रही हैं कि आपका एप्टीट्यूड जो था फैशन की साइड पे था एंड यू वेरी इंटरेस्टेड इन दैट फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज एंड Yes. फ्रॉम व्हाट यू सजेस्टेड इट सीम्स कि आपके फादर जो थे वो भी आर्टिस्टिक साइड पे थे, लेकिन फिर भी ओए लेवल साइंसेज में करने की क्या वजह थी? इसलिए क्योंकि सारे कजन्स एंड फैमिली के अंदर आई बहुत सारे लोग मेडिकल बैकग्राउंड से थे, तो माय पेरेंट्स वांटेड कि हमेशा होता है ना जो एंड आई एम द हम्म. एल्डेस्ट, तो हमेशा होता है कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उनको कोशिश करते हैं कि वो मेडिकल या इंजीनियरिंग या जो भी जेनेरिक फील्ड हैं उसके अंदर जाएं एंड आप बच्चे को शुरू से ही अर्ली स्टेज से बोलते हैं कि दिस इज़ अ गुड फील्ड एंड दिस विल डू वेल फॉर यू. So that's why I was also put into that position, but my parents never forced me. You know how every kid is a bit confused at that stage. So my parents always try to convince me that if I keep science, I will be open to jumping from one field to another. Because अगर आप business ले लेते हैं, later on you wanna do medical, you might not be able to switch from there. मगर साइंस से आप बिजनेस में जा सकते हैं, बिजनेस से आगे आप फिर किसी और क्रिएटिव फील्ड में या फिर wherever you want to go. So that's why उन्होंने मुझे convince किया, which is not a bad choice I would say. अगर आप confused हैं आप ये कर सकते हैं रूट, लेकिन अगर आपको बहुत सारे बच्चे आजकल के बच्चे बहुत intelligent भी होते हैं जिनको from a very young age they're very focused and they know कि उनको क्या करना है आगे जाके. तो अगर आपको इस तरह की मेरी तरह की कोई फील्ड में जाना है या आपको मार्केटिंग में जाना है या बिजनेस साइड पे जाना है, अकाउंटिंग में जाना है, देन यू वुड नो दैट हाँ मुझे शुरू से ही अपने मैट्रिक से या ओए लेवल से ही मुझे बिजनेस की फील्ड लेनी चाहिए. यानी कोई हर्ज नहीं है कि उस पॉइंट पे आप साइंसेज ना पढ़ें बल्कि वो सब्जेक्ट्स पढ़ लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, बिकॉज इवेंचुअली इट डज गिव यू एक्सपोजर टुवर्ड्स दीज एरियाज. फॉर श्योर एंड आई डू थिंक मेरी जर्नी है, मैंने सब कुछ पढ़ा, मैंने साइंस भी पढ़ा एंड आई गॉट अ गुड knowledge about what physics is and what math is, add math is, and chemistry is, and then later on went on to business accounting, and then from here fashion, like I think I've been
I've played in all three fields and specialized in one then. Yes. अच्छा, सिद्रा ये बताएं कि द यंग स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग यू, एक फैशन डिजाइनर एसेंशियली करता क्या है? आप गुल अहमद में हैं, आप मैनेजर हैं वहाँ पे फैशन डिजाइन की, तो आपका डे टू डे जॉब जो है वो एक्चुअली है क्या? मेरे डे टू डे जॉब देखिए, फैशन डिज़ाइनर बहुत सबसे पहले मैं बताऊंगी, फैशन डिज़ाइनिंग लोगों को लगता है कि ओ इट्स लाइक अ वेरी मॉडर्न फील्ड, एंड अगर हमारा बच्चा इस फील्ड में चला जाएगा शायद वो मीडिया में चला जाएगा, एंड हमारा एक बहुत ही जेनेरिक सा एक फियर भी होता है अपने बच्चों को लेके कि मीडिया में चले जाएंगे बच्चा स्पॉइल हो जाएगा, एंड नो 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 आई शुड नॉट लेट हिम और हर डू दिस, but fashion designing is connected with media and social media and all of that, लेकिन basically है तो it is a clothing business, but then it is very vast, it opens up many opportunities, and ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कपड़े ही बनाएं, आप एक स्टाइलिस्ट भी बन सकते हैं, आपने कपड़े नहीं बनाने, but you can actually dress someone, and आप फोटो शूट्स के अंदर जा सकते हैं, बिकॉज आप ये फील्ड आपको बहुत सारी चीज़ एजुकेट करती है, एंड यू कैन गेट इनटू मेनी अदर। सो इन एट आइडियाज़ मैं कपड़े ही बनाती हूँ, एंड मैं उनके रेडी टू वेयर डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, विच इज़ अ प्रेप डिपार्टमेंट, एंड वी मेक फॉर्मल्स एंड सेमी फॉर्मल्स एंड ready to wear digital prints, embroideries and everything. So that's what comes under my supervision, and of course then we also get to, because we need to do photo shoots that also comes under me, and I'm a part of a very big team. This is not a one man job, and अब आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो आप अकेले बैठ के सारी चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन of course you have to supervise. So I'm a part of a very big team, and we're many designers, and we all sit together, we plan out collections and themes and forecast and trend forecast कि अगले 6 महीने साल अगले साल क्या होगा, स्प्रिंग समर फॉल विंटर, लिटरली जो आप टीवी पे देखते हैं वो हमारा बेसिक डे टू डे काम है, टू बी वेरी अपबीट एंड ऑन ट्रेंड with globally, and with our surrounding. तो तो सिद्रा, ये जो आप जिस तरह बता रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि हम जो आउटसाइडर्स हैं, हमें लगता है कि फैशन तो बिल्कुल एक स्पर ऑफ द मोमेंट का डिसीजन है कि ये वाली चीज़ है, लेकिन जो आप बता रही हैं उसे लगता है कि देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एक बड़ी प्लानिंग उसके अंदर जाती है कि अगले साल की स्प्रिंग कलेक्शन जो है वो क्या होगी, वो अभी से बैठ के डिसाइड हो रहा होता है। इज इट ट्रू? फॉर श्योर इट्स अ वेरी सीरियस ऑक्यूपेशन। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप जो है हंसी मजाक एंड हु हा हा अच्छी पिक्चर एंड यू लुकिंग नाइस एंड वेयरिंग क्लोथ्स या किसी को कपड़े पहना दिए। आप जब इस फील्ड में जाते हैं, इवन यूनिवर्सिटी लेवल से दे ट्रेन यू इन एवरी सेमेस्टर कि आप एक चीज़ बनाएं, एंड देन फिर एक जूरी बैठती है उसको क्रिटिक करती है। तो एट अ वेरी यंग अर्ली स्टेज इन योर करियर दे स्टार्ट टीचिंग यू कि आप जो भी बनाएंगे, बिकॉज यू आर पुटिंग योर प्रोडक्ट outside for the masses or for a niche market, लोग आपको criticize करेंगे, and you need to ठीक be है। open to feedback कि आपको पता है कि आप क्रिएटिव भी हैं, जितने भी क्रिएटिव हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट चल रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं, एंड देन of course it's up to you whether you want to be like okay I don't care लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं, मैं तो ऐसा ही डिजाइनर हूँ and I want to create something unusual, या फिर you want to be like you want to become commercial and you want to sell whatever your creation is. तो इट्स अ वेरी सीरियस फील्ड, एंड हाँ बहुत प्लानिंग जाती है इसके अंदर, एंड बहुत रिसर्च वर्क होता है, देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ रिसर्च डे टू डे, बिकॉज यू हैव टू बी ऑन ट्रेंड। इफ यू आर ऑब्सोलीट, अगर आप एक पुरानी चीज़ बना रहे हैं विच इज़ डन एंड गॉन, देन यू आर नॉट सेलिंग, यू आर नॉट कमर्शियली वाइबल, you're not making money for the company, they don't need you, so they do need people who are confident and hard working. एंड आई मस्ट टेल यू, जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, फैशन डिज़ाइनिंग बिल्कुल बुकिश वाली पढ़ाई नहीं है, किताबें नहीं ठीक होती है। हैं, ठीक है। जो 4 years की डिग्री है, इसके अंदर बहुत मैनुअल वर्क होता है, एंड शुरू में थोड़ा सा वो पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री ऑफ फैशन एंड हिस्ट्री ऑफ दिस एंड दैट आर्ट एंड ऑल, कि कहाँ से आया एंड हाउ इट ऑल केम थ्रू, ड्राइंग का हिस्ट्री, बट लेटर ऑन इट इज़ ऑल मैनुअल वर्क, आपको सोइंग भी प्रैक्टिकल वर्क है। आप हाथ से काम करने वाले होने चाहिए। हाथ से काम करने वाले होने चाहिए। इवन दो आप ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में शायद ये सब कुछ ना कर रहे हो, कि आपको सिलाई भी सिखाते हैं, दे टीच यू सोइंग आल्सो, दे टीच यू पैटर्न मेकिंग, व्हिच इज एक्चुअली अ टेलर्स जॉब टुडे, दैट दे मेक पैटर्न्स एंड दे कट फैब्रिक, बट दे टीच यू
pattern, they teach you how to drape fabric, तो draping भी आती है. Then you also they also teach you how to make fashion illustrations and painting and drawing. That's all part and parcel of this entire journey. But does not mean that you have to do all of this. But to excel in this field, you need to know. अगर आपके पास नीचे भी लोग काम कर रहे हैं जो ये सब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रेपिंग कर रहा है, आपके पास कोई जूनियर डिजाइनर है, आप सुपरवाइज कर रहे हैं, बट until unless you don't know the skill, you cannot teach them or you cannot tell them कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं. So for all of that, ये सब आपको डिग्री में सिखाते हैं, and which does help you later on. Yes. तो सिद्रा ये बताएं कि फ्रीडम ऑफ वर्क कितना है, ऑटोनॉमी कितनी है, क्योंकि आपने कहा कि ज्यूरी भी बैठती है और आपका वर्क क्रिटिसाइज भी होता है और बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट भी हो जाती हैं, कुछ एक्सेप्ट हो जाती हैं, तो ऑटोनॉमी कितनी है? क्योंकि जब क्रिएटिव लोगों को हम देखते हैं, मैं भी जब क्रिएटिव स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ, तो उनका एक ये बहुत बड़ा एलिमेंट ये होता है कि वो सुपरवाइज इन्वायरमेंट में काम नहीं करना चाहते. वो कहते हैं कि बिकॉज वी आर वेरी क्रिएटिव, then we need to work in an environment which gives us freedom to think, which gives us freedom to implement our ideas. लेकिन आप जो बता रही हो उसमें ऐसा लगता है कि yes there is some freedom, लेकिन there is also a lot of scrutiny of your work. So आपका एक्सपीरियंस जो है वो क्या क्या रहा है इसमें? क्या फ्रीडम है या नहीं है या हाफ एंड हाफ है? व्हाट वुड यू सजेस्ट? देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के क्रिएटिव इंसान हैं. आप ऑफ कोर्स अगर आप क्रिएटिव हैं और आप इस फील्ड के अंदर आए हैं, फैशन डिज़ाइनर बन रहे हैं, यू पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, व्हाटएवर यू आर मेकिंग, एट द एंड ऑफ द डे यू डू वांट टू मेक मनी एंड टेक मनी होम, राइट? हम सब अपना करियर इसीलिए बनाते हैं बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू मेक ब्रेड एंड बटर. तो अगर आप बोलें कि मैं ऐसी एक इंडिविजुअल हूँ जो बस मैं कुछ भी बनाऊँ, आई एम वेरी क्रिएटिव, बट आई एम क्रिएटिंग दिस एंड आई डू नॉट नीड एनीबडी एल्सेस अप्रूवल एंड वैलिडेशन, so then I don't know where it's leading, and if you'll be able to, like, if you'll be accepted in the society, so that pressure is there, that supervision is कि at the end of the day आप कुछ भी कर रहे हैं, you will be putting your product, you will be putting your creativity, even if it is not clothing, if it is jewelry, if it is just prints, or some accessory that you're making, which is also a part of this degree. आप बना रहे हैं और लोग नहीं खरीदते, तो देन दिस इज अ गुड फीडबैक ऑल्सो. अगर क्रिटिक नहीं कर रहे, कोई जूरी नहीं बैठी हुई, लेकिन आपका प्रोडक्ट फेल हो गया बिकॉज किसी ने नहीं खरीदा, तो ऑन ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है. और ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है दैट वही चीज़ है कि आप कुछ दे रहे हैं मार्केट में और आपको उसका फीडबैक मिलेगा, मॉनेटरी मिलेगा या फिर नहीं बिकेगा, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जी. अच्छा, ये बताएं सिद्रा के वर्किंग इन फैशन इन पाकिस्तान, आई मीन समटाइम्स वी आर डीलिंग इन अ सोसाइटी विच इज कंजर्वेटिव. सो कई दफ़ा हम देखते हैं कि फैशन ब्रांड्स जो हैं दे एंड अप इन अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज. वो कोई कंट्रोवर्सीज कोई उनकी इंटेंशन इस तरह की नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ बहुत डिवाइडेड ओपिनियंस हैं, तो वहाँ पे कंट्रोवर्सीज जो है वो चाहते ना चाहते क्रिएट हो जाती हैं. सो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि क्या कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए, या चले कंट्रोवर्सी होती है तो थोड़ा नाम भी हो जाता है, कोई बात नहीं, खैर इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. व्हाट डू यू सजेस्ट? कंट्रोवर्सी देखिए, हमारे क्लोथिंग लाइन में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो यही होती है दैट आप किसी ने somebody has basically plagiarized. That is something that आप लोग पिकअप कर लेते हैं that oh my god, this designer or this creative person or jewelry designer or print designer has copied some global designer or local designer. तो यही कंट्रोवर्सी होती है. and some people do get fame, 10-minute fame भी होता है. आजकल आप देख रहे हैं ये द होल पार्टी हो रही है वाला जो पूरा चल रहा है, दैट्स आल्सो 10-minute fame. So some people can benefit from it. It depends how what kind of a person are you. कुछ लोग बहुत sensitive होते हैं, but I do think that that's just an advice that जो लोग यहाँ इस फील्ड में आते हैं and they of course they want to put themselves out there and become a fashion designer, या तो आप entrepreneur बन जाएंगे, अपनी एक ब्रांड स्टार्ट करेंगे, या फिर आप एक मेरी तरह एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन करेंगे या एक छोटे ब्रांड को ज्वाइन करेंगे जहाँ पे आप बैक स्टेज बिहाइंड द इंटायर गेम आप वहाँ पे उनकी बैकबोन है और काम कर रहे हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने आप को जो है वहाँ पे लगा अपने आप यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर. तो आपको थोड़ा सा थिक स्किन होना पड़ता है. यू कैन नॉट बी very sensitive because you will be criticized every step of the way, but you have to be confident that whatever you're doing is right, and you have to believe in yourself. You have to believe in what you do and what you opt for,
एंड वो आ जाता है। वो जब ये आपकी जो फैशन यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये भी आपको बहुत ट्रेन करती है। ये जो पूरी ठीक एक्सरसाइज है। है ऑफ बीइंग क्रिटिक्ड एवरी कलेक्शन दैट यू शो इन एवरी सेमेस्टर, that's a very good exercise of becoming thick skinned and putting up a, a rough gear on you for इसका yourself. मतलब है कि इस फील्ड में क्रिटिसिज्म जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है, और अगर आप उस क्रिटिसिज्म को जो है वो लेने की अहलियत नहीं रखते, तो देन यू मे स्ट्रगल इन दिस फील्ड। हाँ, देखिए वही है कि फेम भी है, यू गेट अ लॉट ऑफ हुँ। लव इफ यू डूइंग समथिंग, यू बीइंग एक्सेप्टेड, एंड आप ऐसा कर रहे हैं जो सबको अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल एक्सेप्टेंस भी है बट क्रिटिसिज्म भी है, बट इट्स ऑल अ लर्निंग गेम, आप उस सबसे सिर्फ सीखते हैं एंड यू बिकम बेटर डे बाय डे कि अच्छा ठीक है। ऑफ कोर्स जब आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो आपको बहुत ग्लोबल फैशन सिखाते हैं वो लोग, आपको गाउन्स बनाना सिखाते हैं, ड्रेसेस बनाना सिखाते हैं। Nobody teaches you how to make a shalwar kameez, but the whole point is कि आपको वो गाउन्स और मुश्किल चीज़ें इसलिए सिखा रहे होते हैं बिकॉज ये तो आसान चीज़ है, ये तो आप खुद पहनते हैं और ये आप अपने ठीक अराउंड है। देखते हैं, आपको पता है कि ये बनाना भी आसान होगा, लेटर ऑन। तो कम्फर्ट ज़ोन से आपको बाहर लेके जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो आपको ये पूरी जो उन्होंने द वे दे डिज़ाइन दिस कोर्स, वो आपको कॉन्फिडेंस ही देता है, और वो आपको इट टीचेस यू अ लॉट आल्सो, एंड व्हेन यू जॉइन द प्रैक्टिकल फील्ड देन ऑफ कोर्स ऑन जॉब की जो ट्रेनिंग है दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट, एंड बहुत कोर्स। सारी फील्ड यहाँ पे देयर इज़ अ टेक्सटाइल साइड ऑफ इट, जहाँ पे आप जाते हैं एंड यू एक्चुअली लर्न के कपड़ा कैसे बनता है, प्रिंट कैसे होता है, फिर आगे स्टिच कैसे होता है, ये एंड देन सिद्रा, इस पे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी और डिटेल बताएँ कि जब हम कहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग, तो क्या फैशन डिज़ाइनिंग से मुराद सिर्फ़ कपड़ों की डिज़ाइनिंग है, और देयर आर अदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन इट एज़ वेल? क्योंकि किसी ने भी बड़ा अच्छा कमेंट किया कि ग्रास रूट लेवल पे तो ये भी अवेयरनेस नहीं है कि फैशन डिज़ाइनिंग होती क्या है, और लोग यही समझते हैं कि शायद इसका कोई मॉडलिंग से बस कोई ताल्लुक है। और आगे हम वो उस पे भी बात करेंगे कि व्हाई आर पेरेंट्स स्केयर्ड टू सेंड देयर किड्स इन दिस फील्ड। बट व्हाट डू यू रेकन कि फैशन डिज़ाइनिंग एसेंशियली क्या है? इसमें कौन-सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं? फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत वास्ट फील्ड है, और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक क्लोथिंग बिजनेस में ही अपने आप को चमका सकते हैं, एंड यू कैन मेक अ नेम इन इट, बट यू कैन बिकम अ ज्वेलरी डिज़ाइनर, यू कैन बिकम अ शू डिज़ाइनर, बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू ठीक है। फैशन, यू कैन बिकम अ प्रिंट डिज़ाइनर। इफ हुँ। नथिंग, you don't want to make clothes, but you're just good at styling, you're putting three four things together and taking out a look। आप स्टाइलिस्ट भी बन सकते हैं, आप एक इवेंट फैशन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं, फैशन ठीक है। शोज भी होते हैं, यू कैन इवन गेट इनटू फैशन शो, फोटो शूट्स भी होते हैं बिहाइंड द कैमरा, इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। यू कैन पिक अप एनीथिंग दैट यू लाइक, एंड आपको इस की अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप एक डिग्री करते हैं, हुँ। आपको ये सारे एवेन्यूज दिखते हैं कि ओके आई कैन, इफ आई एम नॉट गुड एट दिस, probably you've joined a university and you're like, okay, I'm not good at sewing, I'm not good हुँ। at maybe designing, but okay, maybe I can open up a fashion management event management company and start doing shows and catering to this business, this side of the business। तो करने को तो बहुत कुछ है, एंड जहाँ तक पेरेंट्स का ये सोच है कि हाँ मॉडल बन जाएंगी हमारी बच्चियाँ, या हमारे बेटे, अगर हम चले जाएंगे, हुँ। नहीं मॉडल नहीं बनती, लेकिन यस मॉडल्स के साथ बहुत काम होता है एंड बहुत सीरियस काम होता है, बिकॉज हमें उनकी ज़रूरत है, वट एवर वी आर मेकिंग दे हैव टू वेयर इट एंड दे हैव टू लुक गुड, ताकि हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा लगे। तो इट गोज हैंड इन हैंड, मॉडल से, फोटोग्राफर से, एंड थोड़ा बहुत मीडिया से ताल्लुक इसलिए होता है बिकॉज यू डू वांट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, एंड आई गेस अब ठीक है। जो टाइम है, सारे पेरेंट्स इतने अवेयर हैं ऑफ इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया, तो इतनी अवेयरनेस तो है उनको कि हाँ ये सब चीज़ें दे ऑल गो हैंड इन हैंड, एंड आपको अपना एक पेज भी बनाना है, फेसबुक पेज भी बनाना है, और दिस इज़ हाउ यू रन योर बिजनेस। तो आई थिंक दे डू अच्छा, अंडरस्टैंड। ये आपने कहा ना कि मॉडल के साथ काम करने वाला, तो मुझे ख्याल ये आया कि शायद इस कैरियर की एक्सेप्टेबिलिटी वुमन में तो फिर किसी हद तक है कि आवर आवर डॉटर वांट्स टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, बट इफ अ सन एट होम सेज के दे वांट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, आई थिंक उस पे तो बहुत ज्यादा जो है एक बैकलैश क्रिएट हो जाएगा घर में, और शायद हमारे कुछ घरों में तो बिल्कुल मातम ही शुरू हो जाए इस बात पे कि लड़का जो है वो फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में जाना चाहता है। So do you agree with it? You will not believe
you will not believe the amount of boys that join this field. और मेरे साथ भी बहुत सारे लड़के हैं जो काम करते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे थे. ऑफ कोर्स अमाउंट अगर आप रेशो कैलकुलेट करें तो वो कम है, क्योंकि हमारा आई थिंक कुछ ठीक है. कल्चर ऐसा है कि पेरेंट्स नहीं आने देते. In men also do absolutely well in this field, and there's a lot of scope for men and boys, because हमारे parents तो शायद लड़कियों को इतना जाने ना दे, because there's a lot of traveling also is involved. आप जा रहे होते हैं आउटडोर शूट्स पे, लोगों से मिल रहे होते हैं, इवेंट्स पे जा रहे होते हैं, तो लड़कों के लिए भी बहुत स्कोप है. एंड जहाँ तक पेरेंट्स का ये सोचना कि ओ मातम स्टार्ट हो जाएगा if their son is interested in clothing and designing and styling someone, then देखिए मेंस वेयर भी तो है. अगर इट्स नॉट ओनली फीमेल उसका women's wear, but मेंस वेयर भी है, and there's a lot of scope. हमारे पास मेंस वेयर डिजाइनर बहुत कम है, शायद just handful, you know. True. तो you should not stop your children, because मार्केट बहुत है, और जो है कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें प्रोवाइड करने के लिए लोग बहुत कम हैं. तो जितने जितने लोग आएंगे उतना उतना स्कोप भी बढ़ेगा, एंड बहुत स्कोप हो भी गया है. तो दे डू पिक अप, बिग कंपनीज आल्सो पिक अप बॉयज एंड मेन, यू नो, जो यहाँ से ग्रेजुएट करते हैं. लड़कियों का भी स्कोप है. You just need to be an individual, you just need to be a very creative person, and you have to be passionate about this job. And it's a very interesting field. मतलब अगर आप passionate हैं, आपको बहुत मजा आएगा every day, because you get to do something new. You get to like sit down and design something on the paper, and then you create it, and then you see जब आपकी creation बन के आती है, that oh my god, this is looking really nice and I made it, you know. And then somebody wears it, and that person is also looking really nice. So it gives a very good encouraging boost to your morale कि okay, this is something that I made. And then it is Sidra, कभी ऐसा हुआ है कि you are walking on the street or in a mall and you saw somebody wearing what you designed and you told your family, I designed this thing, and they're really that proud of you. ऐसा होता है? many times, you know, I see so many people wearing my design that I want to stop them and tell them, you know, I'm the designer. But of course you can't do that, because वो retail में Yes. जा रहे हैं shops पे, and they're buying it, और वो तो हजारों के हिसाब से बन रहा है. But yes, it's a very proud feeling that you made something that somebody picked up without knowing who you are, but you know, they believed in your product, and they picked it up, and they wore it, and they thought, and they're looking nice, you know. So Wonderful. it's a very nice feeling, that way. अच्छा सिद्रा, ये बताएं, would you call fashion designing a stable career? And I would also like you to define stable for me, because I think it's a very controversial term in our country. Stable career तो है, because you can make a lot of money, and you're in it for good, you know. And आप एक बहुत young level से start करते हैं, you become, for example, आप clothing की ही line में, मैं आपको अपनी example दूंगी, that आपने एक छोटी company join किया या बड़ी company join किया as a junior designer, you get to learn, and then you work your way up, you know, from a executive, you probably become a deputy, and then a manager, and then senior, and then head, and then you can become a director, you know. तो scope बहुत ठीक. है, and it is a very stable career. अगर आप बड़ी टेक्सटाइल जायंट्स के लिए काम करते हैं तो yeah, you can make a lot of money. They do pay you, they're very good pay masters. अगर आप एक छोटे क्लोथिंग ब्रांड के लिए काम करते हैं, they might not give you a lot of money, but you will be exposed, you will be meeting a lot of people. आप you know, one on one client meeting कर रहे होंगे, तो आप अपनी PR बहुत बनाते हैं, and PR ठीक really है. works in this field. It cannot be that you are a designer and you're not meeting people and people don't know you. You have to go, you have to meet. ये सब चीज़ भी it's very important. And stable तो है career. अगर आप अपना भी खोलते हैं, for example, you're a person who doesn't want to work for anyone. So it's a complete business, textile business है या clothing business, पूरा एक वो है जो आप you can launch your own brand, you can create your own you can create your own build a team of for yourself, team of designers, Can you tailors. start with your own business rather than looking for a job straight away? क्या आपके पास डिग्री में इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आप wouldn't it be a big risk? That depends, you know. More than that, you also need a lot of capital to start. So if you do think that you have that and you can take a financial risk, then why not? Because हर जगह आपने सीखना है, और कौन कह रहा है आपको, अगर आप अपना भी स्टार्ट करें, बहुत सारे
जो मेरे साथ लोग थे उन्होंने अपना स्टार्ट कर लिया राइट आफ्टर ग्रेजुएटिंग, क्योंकि उनकी एक अपनी विजन थी कि हमने ग्रेजुएट करना है एंड वी स्टार्ट आवर ओन ब्रांड. So आप कर सकते हैं if you have the financial backing or you have the capital, and nobody's telling you to launch your brand on a very large scale. You can just do it slowly and steadily on a smaller level and then take it up. आपने 10-20 pieces से start किया, एक exhibition लगाई, अब तो इतना आसान है. You can just put an exhibition at home and market it on social media, call people over and अपने friends में circulate करें, दोस्तों में circulate करें, वहीं बिक जाता है. एंड वही वर्ड ऑफ माउथ से मार्केटिंग होती है, एंड दे लाइक यू, दे विल कम अगेन. एंड ठीक है. later on you can open a shop, you can grow it, you can have 10 shops or maybe just become an online business. So there's a So you lot can of start small. बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कैपिटल आपको नहीं चाहिए, शायद बहुत ज़्यादा मेहनत शुरू में चाहिए, लेकिन आप छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं. मेहनत चाहिए शुरू में, क्योंकि जब आपका अपना ब्रांड होता है आप सब कुछ कर रहे होते हैं. एंड फैशन ठीक है. डिजाइनिंग डिजाइनिंग नहीं है, अगर आप अपना कर रहे हैं देन यू आल्सो नीड टू नो अ बिट अबाउट द बिजनेस साइड ऑफ इट, हाउ टू मेक मनी, रिवर्स ठीक इंजीनियरिंग, है. कि अगर मैं बना हम्म. रही हूँ तो मैं कितने पैसे बना लूँगी, इफ़ आई हैव टू पुट इफ़ यू हैव टू जनरेट इतने पैसे, तो वही रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाती है. तो ये सब चीज़ें भी दे डू, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कोर्स. But I would ठीक say है. that it would really benefit you if you are coming from a business background and then you later on get into the fashion field. That will really help you with accounting and business, because accounting is one um, subject that they do not teach in fashion designing, and I do stress राइट. upon बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे हम्म. स्टूडेंट्स जो अपना काम कर रहे होते हैं, they do find difficulty in accounts, and they need to, because जब when your business grow then you don't know कि अच्छा उसकी cost sheet कैसे बनानी है, and कितने margins बिल्कुल. लगाने, overheads क्या होते हैं, ये सब चीज़ें. तो business background से आने में it will be a little easier for you, but you do need to be good at drawing. You do need to have a bit of your creative side, and you need to be passionate about this, because always remember, this is for all the students out there who are listening, that a university or any education institute can only polish your skills. They cannot teach you from scratch. Maybe technical skills they can teach you, but aesthetics they cannot teach you. They need to come from within. Everybody knows that, yeah, this is something that I do. I like clothing, I can put colors together, I'm a different person and I'm a creative individual. you know so yeah, that's my advice to them. जरा ये बताएं कि एक तो आपने क्रिएटिविटी की तो खैर बार बार बात हुई कि दिस इज अंडरस्टूड थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव टू बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड, बट डू टेल मी दिस थिंग दैट व्हाट आर सम ऑफ द अदर थिंग्स दैट यू थिंक आर important. For example, last 2 weeks ago we had this session with a marketing mentor, and I asked him if it's important that you have to be an extrovert to be in the marketing field, and he suggested there's not essential requirement and you can be an introvert and still be successful in marketing. So similarly जब हम फैशन डिजाइन में देखते हैं तो कैन यू थिंक ऑफ फ्यू ट्रेड्स, चाहे वो पर्सनालिटी के हों या वो इंटरेस्ट के हों या वो सब्जेक्ट के हों, जो कि इम्पोर्टेंट हैं टू मे बी बिकम सक्सेसफुल इन दिस फील्ड. That's introvert and extrovert की जहाँ पे आपने बात की है, I do feel that introvert and extrovert has nothing to do with fashion or marketing or medical or anything. वो आपको आपकी पढ़ाई एंड जो आप एजुकेशनल जर्नी है आपकी, वो आप में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डाल देता है. एंड इंट्रोवर्ट अगर आप हैं भी, नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट जॉइन अ कंपनी एंड यू कैन वर्क ऑन द बैक एंड. आप क्रिएटिव हैं, इंडिविजुअल हैं, आपकी आप बोलना नहीं चाहते, आप कैमरा के फ्रंट में नहीं आना चाहते, यू डोंट वांट टू बी द फेस ऑफ योर own creativity, but some maybe you can join a design team किसी और की, and you can make a name there. And apart from that, जहाँ तक आप skills की बात कर रही हैं, वहाँ पे I do feel that drawing, being good, a bit better in arts will really help you. ठीक है. And one more thing I'll tell you, that फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में सिर्फ फैशन डिज़ाइनर्स या जो BFD करके आते हैं, they are not the only ones who are hired and picked up by big brands, or you can say big names. जो फाइन आर्ट्स की फील्ड में लोग होते हैं, there are a lot of people who are working with me on very senior levels, who are fine artists, and because they ठीक knew है. how to draw and they could sit down and make designs and make embroidery patterns,
or sketch better, they also have very good jobs and very good scope in this field. Fine artist हो गए या textile designers हो गए, print designers हो गए, graphic designers हो गए, So as long as तो you got a good creative skill, whatever you are good at, तो आपके लिए इस फील्ड में सर्वाइवल जो है वो है। अच्छा, अदील ने एक सवाल पूछा है, वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ वेलकमिंग इज दिस फील्ड फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हु हैव अ फ्लेयर फॉर फैशन डिजाइन? What do you I would think? Of it? Hello, Adil. I would give you a very good example of a friend of mine who was from the medical field. तो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, और उन्होंने एक साल मेडिकल करके एंड दे स्विच्ड इन फैशन। इवन अमीर अदनान में आपको जितना बड़ा नाम है मेंस वेयर के अंदर, उसका उनका एग्जांपल दूंगी दैट ही वाज एन इंजीनियर but he was very passionate about clothing and he opened a business and today look at it, it's such a big name. किसी के घर में भी शादी होती है, कुछ भी होता है, सब लोग अमीर अदनान के पास जाते हैं शेरवानी खरीदने के लिए मोस्टली। It's in all the major malls of Karachi, Islamabad, Lahore, everywhere. So as long as you have the flair, you know what designing is, you know how to put colors together, थोड़ा बहुत आपको पता है कि हाँ मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ। चाहे ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी लाइक मी और यू नीड टू हैव योर ओन इंडिविजुअलिटी। तो अगर आपको मालूम है दैट या यू हैव इट, नो मैटर you are from an engineering field or you are from medical field or any other field, accounting background, you can become a designer. And Um, I would say there are so many people who are working from home who don't even have a degree, but they're doing very well because they have the flair. They are creative individuals. Maybe they didn't get a chance to take a degree, but वो कर रहे हैं, उनको aesthetics है, लेकिन डिग्री आपको बस हेल्प करती है। इट एक्चुअली गिव्स यू अ डायरेक्शन कि हाँ, और आपको वो कॉन्फिडेंस देती है बिकॉज देन यू नो दैट ओके, यू नो द बिजनेस, यू नो द स्किल्स, नोबडी कैन टेल यू दैट यू डोंट नो इट बिकॉज यू स्टडीड इट, एंड यू वर्क हार्ड फॉर इट। तो वो वाली चीज़ जो है वो आपको डिग्री देती है। सो देन आई वुड रियली रिकमेंड एवरीबडी टू गो फॉर इट इफ I देयर think the next question उसी से related है। रक्षा का question है, she is asking कि जब इतने well known brands हो, and I think Sidra because you are from a well known brand, so she is asking कि जो designers अभी who are just trying out and who are just starting, तो how do they make their name in the market? क्योंकि जाहिर है they don't have as much budgets as the bigger brands. So how do they survive? How do they make people aware of their brand? What is the advice for them? social media marketing is the best platform, and I always tell everybody that it is a free tool, everyone can use it. सब लोग ही कर रहे हैं, जो डिज़ाइनर्स नहीं हैं वो भी कर रहे हैं, जो सिर्फ ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं, आज इतने सारे लोग हैं जो इतने मशहूर हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। तो आई वुड से दैट अगर आप एक बहुत यंग एस्पायरिंग डिज़ाइनर हैं और आप किसी बड़ी कंपनी से एफिलिएटेड नहीं है, then you should first of all make a page on Instagram and market your product, marketing को आप यूज़ करें। एंड आई वुड से इतने आप डीएम करें लोगों को, आप इंस्टाग्राम के थ्रू ट्राई टू रीच आउट टू पीपल हु कैन प्रमोट यू, who can put you out there, because बहुत सारी free marketing, it all goes hand in hand, it's all a part of the business। क्योंकि आप किसी और को बता सकते हैं कि शायद आप फॉर एग्जांपल ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट someone who's doing clothing and you can say let's collaborate and let's put ठीक है। both our products together and let's market it। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, exhibitions होते हैं, you can take part in it। So it's not very difficult, it is just that हाँ, जब आपका अपना brand होता है and you are doing from very ground level, आप ऊपर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत हाथ पांव मारने पड़ते हैं। You have to work very hard and you have to reach out, you cannot just sit in your bubble and sit in your shell and expect that people are going to reach you themselves and they'll buy your product, because they don't know, you have to educate, create awareness। So I think that's a very सोशल simple। मीडिया के जो टूल्स हैं दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक अब बहुत पावर भी इंडिविजुअल्स के हाथ में, इट्स नॉट लाइक दे हैव टू एडवर्टाइज एनीवेयर, इट्स एब्सोल्युटली 100% फ्री। सो बिल्कुल जो आपने कहा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज बनाए, व्हाट्सएप पे एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करें एंड यू आर गुड टू गो। आप एक इन्फ्लुएंसर लें, आप इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आप उनको अपना प्रोडक्ट भेज दें, उनको बोलें आई एम गिफ्टिंग यू माय प्रोडक्ट, प्लीज वेयर इट एंड टेक अ पिक्चर एंड यू कैन जस्ट पुट दैट इज फ्री मॉडलिंग। You don't even need a, that is completely free, it's just that you have to sell, you have to send your product as a gift। तो अब तो you just have to be smart about it।
अच्छा सिद्रा, ये बताएं कि where do you get your inspiration from when you are coming up with the ideas? So people take inspiration from different things. Sometimes people take inspiration from maybe international designers, maybe books and stories and people around them. So where is your inspiration coming from? Research is very important in this field. I always say that it is a day to day thing. जब आप एक डिज़ाइनर बनते हैं, you have to start your day, probably you look at emails, but later on you have to open your research bar and you have to आपने browse करना है what other people are doing, what is happening globally, what are international designers doing or international Hmm. individuals doing or wearing, what are model celebrities wearing, and then through that only you do get your inspiration. And then of course there is WGSN and trends होते हैं, forecast होते हैं, आपको पता होता है कि that this is the trend for next year or year after, and वही ठीक आपको है. ideas देते हैं. That's how you set Sidra, we lost your. Okay, now you're back. Okay, yeah, please continue. Sidra, we can't hear you. I think your mic is mute. I think we no, we lost your. आपकी आवाज नहीं आ रही, unfortunately. आई थिंक प्रॉब्ली कोई कॉल शायद मिडल में आ गई उसकी वजह से. चलें, इट्स ओके सिद्रा. आई थिंक कि वो शायद सम टेक्निकल इश्यूज. आई वांटेड टू आस्क यू द लास्ट थिंग अबाउट पेरेंट्स को जो है और बच्चों को, अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें, बट वी विल लीव इट फॉर द नेक्स्ट लाइव सेशन इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई होप कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं या जो पेरेंट्स भी आपको देख रहे हैं, दे आर एबल टू टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन and able to direct their kids towards this field. This is not a very well known field और बहुत से लोग जो हैं वो साइड पे नहीं आना चाहते, जो आना चाहते हैं वो कंट्रोवर्सीज की वजह से नहीं आ पाते. बट आई थिंक आफ्टर योर इंटरव्यू आई होप कि यू आर एबल टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल टुवर्ड्स इट. So thank you very much for your time and take care and inshallah we'll see you next time. Allah Hafiz.